ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬੇहद ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਦੁਬਈ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਬਈ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 4 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਕੀ ਕੁਝ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੋ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟਿਕਟ ਨਾ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਹੈ? ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਕਦੋਂ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਮਸਕਟ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੈ, ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫਲਾਈਟ ਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਾਅਦ ਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ? ਉਧਰ ਆਂਦੇ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੁਣ ਅਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਫਿਰ ਠੀਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਆਏਗੀ ਫਿਰ। ठीक है। हाँ, मैं भूपेंद्र सिंह, एयरपोर्ट डायरेक्टर, अमृतसर एयरपोर्ट। सर, जो फ्लाइटों पर असर हुआ है जंग के दौरान, क्या क्या असर हुआ है? कौन कौन सी फ्लाइट जो है रद्द हुई? आज हमारे यहाँ से ऑलरेडी 12 बजे के आसपास जो हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट थी वो डिपार्ट हुई थी। और उसके बाद सडनली जैसे हमारी बर्मिंघम की एक फ़्लाइट गई थी जो हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, और ये एयर इंडिया 170 थी, और ये हमारी डिपार्चर इसका 13:25 पे हुआ था। बट ये हमारी टैक्सी पे चली गई थी। टैक्सी पे होल्डिंग पे जाने के बाद में इसको वापस आई, और इसको उसी एयर स्पेस से जाना था। बाद में ये 5:29 पे 17:29 पे फिर फर्दर डिपार्ट हुई, और इसने अपना दूसरा रूट लेते हुए ये निकली है। चूँकि ये यूरोप में जा रही थी, बर्मिंघम जा रही है यूके, सो इसलिए ये निकल चुकी थी। और इसमें काफ़ी ये डिले यहाँ पे हमारे पास होल्ड की गई फ़्लाइट, लगभग 5 घंटे होल्ड होने के बाद में। इसके अलावा हमारी एक स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी जो यहाँ से हमारी 12:25 पे निकली थी, लगभग 12:44 पे गई एक्चुअल टाइम, उसका शेड्यूल डिपार्चर बाद। देन ये दुबई जाने वाली थी, ये थी SG-55 और स्पाइस जेट की फ़्लाइट। बट दुबई के रास्ते में ही इसको मैसेज ये हुआ कि एयर स्पेस का कुछ इश्यू हुआ है, तो ये अहमदाबाद डाइवर्ट हुई है। और अभी ये अहमदाबाद में फिर रीफ्यूलिंग होने के बाद में अभी वापस लगभग 7:30 के आसपास ये अमृतसर वापस लौट रही है। पैसेंजर वापस आ रहे हैं इसमें, और वो सब अपने होटल से उनको सबको किया जाएगा। ये फ़्लाइट अभी डिपार्ट नहीं होगी। इसके अलावा हमारी एक इंडिगो की फ़्लाइट थी जो यहाँ से लगभग 12 बजे के आसपास निकली थी, 6E1427, और ये भी शारजाह के लिए जा रही थी अमृतसर से।
अमृतसर एयरपोर्ट से, इसको भी डाइवर्ट कर दिया गया था। ये सूरत डाइवर्ट हुई थी और अगेन द सेम सिचुएशंस की रास्ते में ही एयर स्पेस क्लोजर की वजह से ये इसको डाइवर्ट हुआ और ये भी रिफ्यूलिंग के बाद अभी लगभग 7:30 पे अभी हमारे यहाँ अगेन अमृतसर एयरपोर्ट पे वापस आ रही है। इनके भी पैसेंजर्स को होटल या जो उनके बाहर जाने वाले लोग हैं या जो वापस जाएंगे ये भी अभी टेक ऑफ नहीं करेगी। और बाकी हमारी जो एक और दुबई की फ्लाइट थी एयर इंडिया एयर इंडिया एक्सप्रेस 191 जो कि अमृतसर एयरपोर्ट से दुबई जाती है, ये फिर एडवांस में इंफॉर्मेशन होने से वो भी कैंसिल हो गई है। ये अभी ये जाने वाली थी, ये कैंसिल हो गई एडवांस में ही। और एक और फ्लाइट जो हमारी शारजाह से अमृतसर आनी का था 1428 इंडिगो की 6E 1428 शारजाह से वो अमृतसर आनी थी, ये भी एडवांस में इंफॉर्मेशन, चूंकि जो फ्लाइट जा रही थी वही वापस 1428 बन के आनी थी, ये भी कैंसिल हो गई है। तो इनके पैसेंजर्स को वहीं पर रुक गए हैं। तो ये इस तरीके से हमारी आज लगभग हाँ 1 2 3 4 इंटरनेशनल फ्लाइट्स 12 बजे के बाद जो डिपार्ट हुई हैं वो लगभग 2 डाइवर्ट हुई हैं, 2 कैंसिल हुई हैं और एक में जो बर्मिंघम वाली थी 5वीं फ्लाइट उसमें डिस्टर्बेंस हुआ, वो लेट हुई है, बट उसने वो फिर लगभग 5 बजे के आसपास डिपार्ट हो गई है। सर क्या लगता है कल जो भी जाने वाली होंगी वो ऑलरेडी कैंसिल, क्योंकि वहां पर तो बंद हो चुका है। अभी देखिए सिचुएशन इमीडिएटली तो क्लियर नहीं थी, एयर स्पेस डिस्टर्ब हुआ और सेफ्टी के लिए, पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए अभी इंडिगो ने एडवाइजरी इशू किया है, अपना इंडिगो एयरलाइंस ने, कि रात के 12 बजे तक उन लोगों ने जो ईरान है और जो मिडिल ईस्ट के आसपास का है एयर स्पेस में डिस्टर्बेंस होने की वजह से रात के 12 बजे तक उन्होंने अपनी जो फ्लाइट है वो कैंसिल कर दी हैं या उनको ऑपरेट नहीं करने का फैसला उन लोगों ने किया। बाकी और भी यही सिचुएशंस हैं कि जो ईरान और उसके आसपास का जो मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है उसमें जो हवाई स्पेस है वहाँ पे डिस्टर्बेंस होने के कारण वो रिस्क नहीं लिया जा सकता अभी, और इसलिए कोई भी एयरलाइंस और कोई भी जो एयरक्राफ्ट है वो पैसेंजर को थ्रेट ना हो, वहाँ पे वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसको होल्ड पे किया हुआ है, उसको नहीं चला रहे हैं, उसको ऑपरेट नहीं कर। यात्रियों को सूचना दे दी गई है क्योंकि परेशान हो रहे हो, क्योंकि एट ए टाइम ऐसा होना यात्रियों के लिए परेशानी है, उनको सूचना दे दी गई। नहीं अभी ये तो है, सूचना उनको अभी दे रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया के थ्रू भी एयरलाइंस भी अपनी सोशल मीडिया एक्टिवेट किए हैं, हम भी एयरपोर्ट अमृतसर एयरपोर्ट भी अपना सोशल मीडिया एक्टिवेट किए हैं। उसके अलावा जो पैसेंजर्स को यहाँ पे ऑलरेडी जो उनको कैंसिलेशन का था उनको भी बता दिया गया था कि एयर स्पेस प्रॉब्लम होने की वजह से हम फ्लाइट जो है वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की गई है। बट ये सडन मूवमेंट हुआ, कुछ फ्लाइटें तो एयर स्पेस में थी जो अपनी सूरत डाइवर्ट हुई और अहमदाबाद डाइवर्ट हुई, स्पाइस जेट की और इंडिगो की, बट ये सडन था, इसमें कोई प्री प्लान ऐसा कुछ भी नहीं था और जो भी हम कर सकते थे। बट मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को जो है ना अपनी कन्वे कीजिए, हमारे जो एस्टीम्ड कस्टमर हैं उन तक ये मैसेज जाए कि ये सिचुएशन जो है वो अभी चैलेंजिंग हुई है वहाँ पे, और इस वजह से ये चीज़ें अभी फ्लाइट का अपना स्टेटस पहले पता करके पैसेंजर्स जो हैं तभी अपना प्लान करें, और ये काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन अभी है। आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि जो आप इजराइल का और अमेरिका के द्वारा जो ईरान पे जो कुछ मिसाइल्स कुछ जो अटैक हुआ है, और अगेन ईरान ने भी रिटेलिएशन में कुछ मिसाइल्स वगैरह अपनी लॉन्च की हैं, तो इन सब की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस है ईरान के अराउंडिंग्स और अपने जो मिडिल ईस्ट, इवन देन कतर, बहरीन और आपका जो यूएई वाला ये काफ़ी ये पूरा एरिया डिस्टर्ब है फिलहाल, वो उसी की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। ठीक है, ठीक है।